सीरीज चाहिए तो फोर लैंग्वेज नहीं बाहर उस तरफ का हो। मेरे फोर दैट फोर नहीं है। किसका? No, sorry. राजकुमार For preference basis also is good. If any new place where our office is not working, if we are going there, so prior to this, we first check hotels, then hand over to us. And next, retreat venue should be on the doodle poll basis. So, and last, if we have such types of annual training and retreat in the summit, so we should also get one extra day to visit nearby places in Chennai or anywhere we will get opportunity. Thank you. Our team choose the topic health. So some unethical activities they are going which affect our team members' health. So one of the remote areas, we are working in villages or remote areas, like some of working in Bihar and also in Karnal and Ludhiana. So at that time of in remote areas, we are not getting good food like कुछ लोग ढाबे का खाना खा लेते हैं तो उनके हेल्थ पे इफेक्ट होता है। सेकंड जो इसमें एक अनएथिकल हो रहा है वो है कि ऑफिस के अंदर एयर कंडीशन जो है वेरी लो टेम्परेचर पे रहता है उसकी वजह से भी कई लोगों को एलर्जी और उस टाइप की प्रॉब्लम होती है। इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ भी कल ठंड लग रही थी मेरे को उसके सॉल्यूशंस हमने कुछ ढूंढे हैं। वन ऑफ दैट की वो एयर कंडीशन जो है वो सबकी सहमति से एक प्रॉपर टेम्परेचर पे रहे जिसका मतलब कि 26-27 के लगभग टेम्परेचर रहता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। सेकेंड फूड वाला है कि भाई उस एरिया में आइदर यू पिक अप फ्रॉम योर होम और pick up from the place where healthy food is available. So and maintain your proper diet. Thank you. Thank you. Thank you. There is nothing we are picking 2 points here on safety. What I am unethical practices using in my life. CIMIT have clear-cut policy not to travel by road after 8 p.m. Super. But in routine, I am doing this unethical practices because of No, serious बात है, please. Correct. I am always focusing to walk at Patna for half day. Then I choose my road travel, and always I reach at my home after 10 p.m. The same is once I am coming Patna.
I'll use my half day there in BAU, and always I am reaching at 11. Some few days before, my colleague traveled from Hyderabad to Patna, and she reached in our guest house after 11 p.m. So next morning I raised this question and she had some problem. But yes, because of there is only two flight options. One is very early in the morning and she is residing 100 km away from Hyderabad. Once she need to fly at 9 a.m., it means she must leave her home at midnight. That is also. So what is the solution? My teammates should stuck me once I reach after 9 p.m. or 8 p.m. in office. They need to struggle or need to talk-a-talkie with me. You are doing unethical practices. Super, super. Give a Just- big hand. Give a big just- hand. Really, very good. Because only then I can improve it. Just next day morning, I requested her, this is not a Correct. practice. You need to make in your mind to reach like in office or in guest house in proper time. Thank you. Excellent. Yeah. Yeah. We need to, these unethical practices, yeah, we all are greedy to capture our assignments on time, but at the same time we are using unethical practices. So my colleagues should always stuck me, knock me not to do this practice, and we all take care to each other not to adopt these unethical practices. Thank you very much. Actually, Dr. Punia just stole my topic. So, I was quite prepared, but नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप बताइएगा नो प्रॉब्लम the same thing with the safety. Actually, yeah, Dr. Punia well said about all those things because we have to travel day and night, Saturday, Sunday, even in the Saturday, Sunday when the work has been on peak, then we have to do every day everything. So, and the second actually the customer service also I have to mention it. So, thing is like that. Unethically, you can say that because we have to look towards like 3, 4, 5 districts in one sandwich. And sometimes what happens when I go to some district and connect with the farmers, and suddenly the other district farmers can call me and say, "Sir, you have to come out here." But we don't have a time to go out there. So we just call them or just contacted them through the phone only. But the thing is that we have to do some ethical practice with the farmer because the farmers is our customer. So we have to stuck with them. We have to provide each and everything, whatever we have a knowledge kind of thing, even in the demonstration, even in the you can say that this machines and all. So, and the thing second thing is that in a customer service we were doing some survey, this LDS survey that is going on is almost like 5 to 7 years. So the thing is means like this in a survey there is a lots of surveys going on within a month. So that thing is quite hectic to us also, to all employees, to other field staff because same thing with the other district, same survey with the other district, and we have very limited staff in the field. So that's why we are quite saturated with that. So we have means I think means we should have some time to get involved in every survey with not with a certain time but with the expanded time. So that's my topic. Thank you so much. थैंक यू थैंक यू The ethical practices that may be followed and its prevention. So, a couple of them are inbreeding. So inbreeding is that we are hiring people of the same location, same caste, same religion,
So that's one, number one. Number two is absence of diversification, right? So we must have diversified team. If somebody's from south, somebody's from northeast, and like that. So that's another problem that is being faced, or we can say that it is a kind of unethical practice. Number three is compromise on processes or HR process altogether. So that's number three. So the preventive points could be strict adherence to the process and procedures. So whatever has been laid down in our books, those must be followed because those have been prepared, being neutral in nature. So we must follow all those procedures as it is. Formation of proper selection committee. So selection committees itself is supposed to be very much diversified. So that is why we pick, for HR interviews, we pick people like Maxwell or Sonam or somebody from program like Madhulika we have in the interviews a lot of times, right? So we do not know the candidates, and that I think this is the best way to judge a candidate on the basis of the skills and expertise they have instead of knowing them. Like, I know you, I'll hire you. That should not be the actual thing. Third is integrity and transparency. So the very most important point, if this is there in all the processes, I think we can go very well in everything that we do. It's not only about HR. We talk about any of the topics. There's integrity or transparency, and I think we are doing pretty well in those things. So thank you. Thank you. We choose the topic 12, bullying or harassment co-worker or colleagues. So the problem is like the gesture. So we have to, while we are talking to the people, then we have to make sure your body language, how you are talking about the people. Okay, the second thing, you have to be presentable, but you are talking about the person. It's not like you are going and asking, hey, do this, do. I don't know the other people how it will take. Okay. The third, if someone is the less competitive, then you should not bully him. If you have a problem, go and guide him and motivate him. You cannot say, hey, you don't know anything. Go and tell, you don't know, I will help you. Okay. So the solution is effective communication or healthy communication should be there. If not in office, please go for a cup of coffee, please. Okay. The third is feedback box or anonymous chat. Okay. If you hesitate to talk people, you can, I suggest to Konika, if we can make it, the box in the office, you can put the chit is there, like I feel this, motivation sessions. If I feel down, if there is a session for motivation or psychological something, so that will be helpful. Yeah, that's it. Thank you. नॉर्मली हम लोग ट्रैवल करते हैं सब लोग फील्ड में, तो एक चीज़ काफ़ी देखी जाती है कि यहाँ नहीं, मतलब एक्सपीरियंस है मेरा कि हम लोग होटल स्टे किया, किसी होटल में गए, रूम था 400 रुपये का, हम जाते रहते हैं उस होटल में, बिल होने वाली 1000 रुपये का 3 दिन का, ठीक है। तो ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। होटल्स में नॉर्मली सब जगह ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है। अब हम लोग तो जाके चेक नहीं करने वाले, काम मिल रहा, आप कहीं भी रूरल एरिया में जा रहे हो, होटल में जा रहे हो, तो वो क्लेम कर लिया, ठीक है। टैक्सी में जा रहे हैं हम लोग, टैक्सी वाले से बिल ले लिया, हम भर लेंगे, आप रहने दीजिए, दे दिया उस बेचारे ने बिल, दिया 500 रुपया, भर दिया 2000। तो जिस तरह की अनएथिकल चीज़ें बहुत सारी होती हैं ट्रैवल में, नॉट हेयर, आई एम नॉट सेइंग, नो इट्स ओके, एक्सपीरियंस की बात है, सही बात है। तो यही है, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू। टीम को देखते हुए इसमें 2-3 पॉइंट बनाए फाइनेंस के, जो कि एक है बीएस में मिसिंग सपोर्टिंग वाउचर्स या डॉक्यूमेंट्स, वो प्रॉपर तरीके से चेक होके आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है सुपरवाइजर का अप्रूवल। कभी कभार सुपरवाइजर का अप्रूवल नहीं आ पाता है लोगों से, तो उसको भी ध्यान में रखें। और तीसरा पॉइंट है अमाउंट की क्रॉस चेकिंग। कभी कभी उसमें जो टोटल करते हैं उसमें भी गलतियां होती हैं, तो उसको भी हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो आप लोग खुद करके अगर भेजेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। एमएस एक्सेल में ट्रेन करा लीजिएगा।
नहीं, कभी कभार वो I know. 10 से टोटल करते हैं। No, they may be very good in procurement, agriculture, farms, all those things. लेकिन they may be poor in arithmetics. वो तो arithmetic the class तो आप ले सकते हैं ना, accounts वाले. और आप अपने आप को बताइए अनएथिकल जिसको आप जानते हो क्या करते हो। Yeah, that you उसको please. suggest नहीं उसको करिए। हम चेक कर लेते हैं। यहाँ इनका टारगेट था, मैं जान रहा हूँ ये अनएथिकल है और मैं कर रहा हूँ, उसको बताना है। What you are doing unethical? नहीं, बताइए। हमारे पास जब आ जाता है तो हम उसको कर लेते हैं। सजेस्ट नहीं करो, वो आपकी जॉब है। वो हमारा काम आप है। ये बताओ, आप अनएथिकल कौन सा फील किए हो अपने आप के डे टू डे एक्टिविटीज नहीं, ये तो आपका जॉब है भाई। what you are feeling regarding yourself unethical practices which is by running with you by some pressure or unknowingly, but still that is unethical. What is the practice with you only? वैसा तो कुछ है नहीं, बहुत हाँ, घर के गए हो। सर कई बार क्या होता है बीईएस में अमाउंट जो है फॉर एग्जांपल 10,000 है और उसमें वो एक्चुअल है पर सपोर्टिंग उसमें 500 का मिसिंग है, तो हमारे हिसाब से वो अनएथिकल है। तो हम फिर जिसका भी वो रहता है तो उसको हम रिक्वेस्ट करके कि आपका ये जेन्यून एक्सपेंसेस है लेकिन ये 500 का वॉचेस मिसिंग है, आप इसको दोनों में प्रोवाइड से करें। आप दोनों में से एक बताओ ना जो आपके साथ अनएथिकल होता है। सर इसको ये तो हम एग्री कर रहे हैं सर इसको हम। फिल्टर कर दूं। हाँ। सर ये कहना चाहते हैं कि समटाइम सपोज डॉक्टर पुनिया गिवन मी ए सेट ऑफ बिल्स, उसमें सर एक एग्जांपल नॉट सपोज आपने 10,000 का मेरे को एक सेटलमेंट दिया है, उसमें भी 9,000 के होते हैं एंड सपोज मंथली क्लोजिंग का प्रेशर है, आई नो इट, आई हैव टू सबमिट इट इन माय ऑफिस, तो मैं क्या करता हूँ क्लोज कर देता हूँ, इट्स ऑन ए गुड फेथ कि सर का बिल सब होगा, ये है मैंने सबमिट कर दिया, ये मेरे लिए अनएथिकल है, आई हैड नॉट चेक द बिल्स थ्रू आउट, और मैंने ये किया, फिर बाद में आपको कि सर ये आपके पास कम थे बिल्स, सर ये बिल मेरे को थमा दीजिए, तो ये करेक्ट प्रोसेस, ये मैंने बाद में किया, लेकिन पहला क्या कि ऑन ए गुड फेथ आई पास दैट बिल जो एंड फेथ था वो अनएथिकल हो गया। यस सर, और उसको क्रॉस चेक ये कर सकते हैं कि इसका जो रिक्वेस्ट पॉइंट है कि सर आप लोग टाइम से और सही से दिया कीजिए। ग्रेट, थैंक ये यू। बोलो सर। Excellent, excellent. करता है एक्चुअली nobody is doing unethical involved in unethical practices according to my judgment. Errors do happen, गलतियां होती हैं, मुझसे होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं, आपको नहीं पता है कि कितनी बार I have to take back my decision. मैं अप्रूव कर देता हूँ, मेल आई अप्रूव, I was telling to Maxwell today, the mail will come, sir approve, I don't read, approve, क्योंकि dozens then मैं कभी नहीं रोकता। Mutual trust. ट्रस्ट, इतना ट्रस्ट करता हूँ, इसीलिए कहते हैं कभी डाउट नहीं होना चाहिए, नेवर ए डाउट शुड बी क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ एनी स्टाफ, आपके मन में भी नहीं होना चाहिए कि ये जो सी नॉर्मली क्या होता है, व्हाट हैपेंस वी ऑल नो, लोअर स्टाफ विल नॉट डू एनीथिंग अनलेस एंड अंटिल सुपीरियर विल नॉट डू एनीथिंग। सो द फेमस स्पीच ऑफ आवर लेट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पार्लियामेंट की स्पीच पढ़िएगा उनकी, व्हाट वाज हिज स्पीच, पढ़ा है, कितने लोगों ने हाथ उठाओ, सुना है, वीडियो सुना है, सुनना उसको। वो कहते थे प्रधानमंत्री जी आज हमने एक सपना देखा उसका यथार्थ ये है, एक मैंने ताड़ का वृक्ष देखा, एक गिलहरी आई ऊपर चली गई, कुतरने लगी, कुतरती चली गई, ऐसा है टॉप टू डाउन। सो यू दीज पीपल, I mean, I fully agree our staff has no intention of violating anything, but certainly I agree with Sundaram ji जो इन्होंने कहा था, rules are not defined to be rigid, पकड़ लिया रूल को साहब, I am holding rule, you know, not like this. Rules are guidelines. Yes. वो हमें गाइडलाइन देते हैं, भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। अरे इन कोविड टाइम व्हाट वाज हैपनिंग, एम्बुलेंस वाज 1,000 rupees, they were charging 100,000. Where was the ethics that time? If your family member is sick, then what you will do? You have to pay. You have to pay. And suppose it is official, then what you will do? So all these things we count, but certainly, you know, the process है। सब गलती करते हैं, nobody is perfect. मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, और फिर मुझे दिनेश जी है, मीनाक्षी है, कोनी कहाँ रहे सर आपने क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया, then I read it, I am sorry,
आई एम सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई है, इसको ऐसे कर लो। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, यू नो, कभी भी बहुत ब्लंट होकर के कोई चीज रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। चढ़ गया नस, वो होती ना, कौन सी नस होती है अंदर, वो ईड़ा पिंगला, तीसरी कौन सी होती है, सुषुम्ना। Some people have, you know, there are 3 veins inside. Maxwell in our spinal cord, they call Ida Pingla. In the middle is Sushumna. Some people know. कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। Ida Pingla, Sushumna. Nobody. अरे कमाल है यार, इंडिया, you know, more, you know. वो योगा होगा सब बेकार है। अरे भाई उसको पढ़ो भाई। जो पहलवान होते, रेसलर, कितने लोगों ने रेसलिंग की है? रेसलिंग कितने लोगों ने किया है कॉलेज में? स्टूडेंट कॉलेज में नहीं, कस्टमर के साथ होते हैं बस। नो रेसलिंग। कस्टमर के साथ, कलीग्स के साथ होता है रेसलिंग। तो कुछ लोग घर से ही उसको टेढ़ा करके आते हैं, आज मैं इसको होने नहीं दूंगा। अरे क्या नहीं होने दोगे मेरे भाई? और तब तक वो मिल जाता, आपसे गले मिल जाता। अरे यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। सो व्हाट वी बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट वी डू इज जनरली इज एक्सप्रेशन ऑफ एंगर व्हाइल टाइपिंग। व्हाइल टाइपिंग, उसका मेल आया बस तुरंत लिख दिया। नो, राइट इट, लीव इन द ड्राफ्ट। व्हेनेवर यू हैव डिसीजन, यू नो, कंफ्यूजन फॉर ए डिसीजन, जब डाउट हो मन में कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसको मेल मत भेजना, और गुस्से में तो कभी मत भेजना। सारे नियम खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा वायलेट क्या नियम होता है एथिक्स का? व्हेन वी डोंट ट्रीट आवर स्टाफ प्रॉपर्ली। द बिगेस्ट ब्रीच ऑफ एथिक्स इज व्हेन वी डोंट रिस्पेक्ट योर फीलिंग। आई कम विद बॉडी लैंग्वेज, ऐसे ऐसे करके बहुत बड़े आदमी है। अरे कौन पूछ रहा तुझे भैया? अलेक्जेंडर, यू नो, अलेक्जेंडर कितने साल में मरा था? बोलो, एनीबडी रेज हैंड? 26। सॉरी, एनीबडी? 32। कैसे मरा था? मलेरिया। मलेरिया। और बताओ, गूगल में देख लिया इन्होंने। कब पढ़ा? आज ही ना? अफगानिस्तान में मरा था। अफगानिस्तान। 32। He died in 32. So that arrogance was broken by a small king of India. So what I want to tell you कि सबसे बड़ा जो ethics हम लोग breach करते हैं, when we don't treat our staff properly, and 80% expression is the body language. It's not necessary to write or say something. Body language expresses 80%. इसीलिए that's why in those literature, ancient literature, it is said that you do meditation. Meditation is what? Meditation is absence of time. All the time, you know, watching yourself, then your ego is demolished. आपका ego खत्म हो जाता है। ego खत्म। तो ego कैसे खत्म होता है वो आपको सीखना पड़ेगा। माला वाला पहनने की आदत बंद कर दो। There is no chair in summit now. Summit में कहीं चेयर किसी फंक्शन में is not allowed. Photography no chair. Otherwise people run for chair. धक्का मारते हैं। और जो बहुत बड़ा आदमी वो पीछे खड़ा हो जाएगा। नो चेयर, व्हाई वी नीड चेयर? सो व्हाट आई फाउंड एक्सप्रेशन ओवरऑल वाज वेरी ऑनेस्ट। आई रियली अप्रिशिएट। मुझे वो भी अच्छा लगा कि भाई एक दिन घूमने का भी होना चाहिए। नथिंग अनएथिकल। सिमिट कल्चर में ये है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में है। व्हेन रिट्रीट मीन्स इट इज नॉट लेक्चरिंग ओनली एंड टॉकिंग ओनली, ऑल्सो शोइंग द न्यू कल्चर। If we are in Chennai and if I am able to organize a bus trip to you to the Mahabalipuram, etc., 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 it will be my honor and my pleasure. Because many of you are coming first time, फिर आप you will cut short to this visit, you want to run there and you will preach what Punia was saying, traveling after 8 o'clock. So dear friends, ये बहुत मैंने दिल्ली ऑफिस में भी कह रखा है, कोनिका कांगी इसको भी कह रखा है। क्यों? समटाइम पता लगा साहब कि रात में 10 बजे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हो 10 बजे? Why are you coming at 10 o'clock? Don't take flight, those kind of flights. Please, if you are reaching Patna or Delhi or Hyderabad somewhere after evening, please stay there. Don't travel by road. Punya ji. Nobody will travel. होटल में जाओ, रेस्ट करो, next morning start. Next morning means 7 बजे के बाद। 4 ही बजे मत चले जाना पुनिया जी। Don't be voucher. Voucher has same problem. You know, you are trying to save money. Actually बहुत लोग होते हैं, अरे यार ये कितना 2000 रुपए लेंगे, तुम कितना लोगे साहब? 1200 लेंगे, 1200. See, if 2000 rupee person is giving you proper receipt, why not to take 2000? Simit is not interested in all this petty saving or money or saving money. Don't try to save money for a Simit, but don't try to burn it also unnecessarily. You all know.
So I am very glad, and health is health. I really appreciate. They copied my fundamental. I used to go in. He says, but as a company there should be certain standards, and we believe that the company should have had proper processes for airing grievances or issues. So there should have been a Vishaka committee, as most of the companies have. If there's issues like this, the lady can go to a certain committee and report. This way the company head would not have known about the issue from the TV news. One. The other ethical issue that I see is the newspaper publishing pictures of the accused and the victim. In this case, not decided, but still. The other thing is that the company is unaware of their own employees. There's one fellow who is not available, the zonal manager from Mumbai. That's one. And the other thing... One-to-one meeting was unethical. Yeah. Yeah. Correct. There's If there was something like that had happened and we were to believe the victim, then the head should not have called her in a hotel room without, I think, it should have been in the public. Yeah, right. They say more than 2 people should be there. Yeah. Correct. And because POSH is a very important topic these days, Me Too movement was there. So we conduct a lot of training on POSH also. There, how the people in movie, the film shooting, film production, lot of cases do happen. Things have been coming. It's not confined to India. The world over, it's happening. So that gender sensitization and inclusivity in POSH, all those things, we do the training for employees. So as I told you a little bit before, be empathetic to everybody. Everybody is coming to work with the sole aim of earning their daily bread. And I think the other thing is also about, ethical issue is also about discussing the issue by staff in the company, saying, oh, she was like that, she deserved... Yeah, casting aspersions. Both on the victim as well as the accused, saying Yeah. that he was like that, he was flamboyant, he would do this, he would get drunk, and I think to abstain from discussing rumors such as that or gossip. Yeah, correct. The gossip should be avoided, unethical, correct. Any other points you would like to add? So other tables can add if you have got any points, please. Most welcome to add. I would also like to add one point over here that being a female or a male employee, you can take a stand not going in somebody's room all alone. Like that is one, ethical part from any employee's side. And definitely the sexual harassment cell should have been truly operational and professional in a company to Correct. They should be serious. Yes. Because cells are there, but definitely that seriousness is lacking most of the time. So it should not be like another policy of the company or something like that. So it should be approachable and stuff. Yes, so sir. mostly Nima has covered all the points. So we had this. Good. Thank you. Story was made by computer company. So somebody in the company जो होगा जिसने confidence. Silence, please. Yeah. कोई किसी कंप्यूटर कंपनी ने इसकी इमेज गिराने के लिए इसको किया था, तो कोई कंपनी में हो जिसने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक करी होगी इसके डायरेक्टर के बारे में, कलीग के बारे में, तो वो एथिक में आता है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ना शेयर नहीं करना चाहिए. Yeah. There is another point. Excellent. Good. If something is internal, that it should be come through the proper discussion. in the Not- IC committee. IC committee. Whatever committee is formatted under the company, it should be passed from there. Not like I am getting news from the media about to me. Yeah, that's wrong actually. Going to media itself is wrong actually. itself is- Going outside the company, galat hai. And nowadays it is going on social media. Correct. So that should is be more- immediately get into social media. That should be avoided. Yeah. Yeah. 1 second. I don't think I need this one. Okay. Good. So, story is that in each of the construction companies or something like that, LIC housing companies there, and their MDs, top management was involved in taking bribes. So what happens?
it is totally unethical, and in most of the company I think top management was involved in the taking bribes. Okay, so because of that suddenly their stock prices came down. So finally who was the sufferer? Investors were the sufferers. But in some cases where the management was very strong, like LIC, they changed the management people, and means change was able to check the downfall of the share prices. So these was the things. These were the things I understood. Okay. Any other input for case study number 10? Supplier. So as so out of 400 tons of the corn procured, the company has given me 250 tons, which is okay, and rest 150 tons is very poor quality material that is to be discarded. So I would call the supplier in my office and I would ask him, so can you offer us replacement of the damaged corn material that you've given us? Actually, this is not possible due to time constraint, and yes, it is very difficult to provide the rest of the material at this point of time. So will it be okay if we just accept 250 tons of material at this point in time and then place the order next time for 150 tons of the material? I think it is difficult because the rates will be high at that time. So is it possible to pay the full payment this time, and will take means we will take decision on later on? But we cannot use the poor quality of the material that has been supplied by your company. I mean, it is of no use to us. I mean, we will not be able to use it as research material. So it's not possible for us to, take that material and also pay you for that. So either we'll, return your material and pay you only for the 250 tons, that is standard, which is okay for us, or else we can give you full amount on the assurity that next season, you will supply us this material at the same cost. It's very difficult to provide the material at next season at the same rate. We can't offer you. But could I offer something else from this? Means if you want, we can offer, our company can offer you for return to compensate this. Will it be okay for you? I say. मुझे कौन का कोई दूसरा वैरायटी दे सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस ट्रिप टू मालदीव्स? नहीं, मेरे ख्याल से मैं एक बार कंपनी से बात करता हूँ, लेकिन अगर ये ऑफ़र अगर आप एक्सेप्ट कर लेती हैं तो फिर हमारे लिए इजी होगा आगे फ्यूचर में भी काम करना एक साथ, हम मिलकर काम करते हैं फिर. The kind of offer that you are giving me at this point in time is compelling me to blacklist you, and we won't be able to take any supplies from you, and even this order of 250 tons stands rejected. सोच लीजिएगा. ठीक है मैम, फिर कोई दूसरा अगर ऑप्शन कुछ हो, अगर आप कुछ और ऑफर करें तो हम लोग देख सकते हैं. See, we will not be able to compromise upon our standards, and we request you to leave the office immediately, and thank you so much. So let me check with my company and management, then we will decide. Corn variety that is produced by your company, you're more than welcome to come back to our office. Else, thank you so much. Thanks, that's it, sir. Thank you. Role play actually was like HR department. Mike. HR डिपार्टमेंट ने एक इंटरव्यू किया है कैंडिडेट का, तो ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू उसने HR डिपार्टमेंट ने पाया कि इसका जो ट्रैवल एक्सपेंस और स्टे है वो फर्जी है और उसके बाद जब वो आया फिर हम लोगों ने फिर डिस्कस करके देखा कि इसका CV भी जो है रिज्यूमे में जो पासिंग डेट है, पासिंग ईयर है और डेट ऑफ बर्थ है, ये भी फर्जी है. तो इस चीज़ को हम लोग कैसे शॉर्ट आउट कर रहे हैं और कैसे कन्फ्रंट कर रहे हैं, और कुछ इसमें और भी स्पाइसेस है, तो हम लोग देखते हैं कि
How are we going to do that? May I come in, sir? Yes, sure. Sit. कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा रहा आपका पहला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था। चलिए आपने कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट। कंग्रेचुलेसन आपको, आपने पहला राउंड इंटरव्यू काफ़ी अच्छा से पास किया है और सेकेंड राउंड में आप आए हैं। तो हम लोग आपसे हमें कुछ क्वेरी है, हमें कुछ कंफ्यूजन हो गया है कि आपका जो स्टे बिल था और जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो लिटिल बिट हाई है, क्योंकि आप जिस होटल में रुके हैं वो होटल हमारे ऑफिस के काफ़ी पास है और हमारे वहाँ पे फ्रीक्वेंट बुकिंग होती है, तो वो हमें 3-4 हज़ार में दे देते हैं और आप 7-8 हज़ार का बिल लगाए हैं उसका, तो आपका कोई जस्टिफिकेशन है? सर ऐसा तो मुझे भी मिला है, वो लोग जैसे प्राइस बोला है, बट कुछ एडजस्ट नहीं हो सकता सर ऐसा कुछ? मतलब ये क्या वो फार्चून की दुकान है यहाँ? कुछ तो कर सकते तो है, आप लोग तो जानते ही तो है खर्चापाती कहाँ होता है। नहीं खर्चा ठीक है, हम जान रहे हैं हम लोग खर्चा कहाँ होता है, लेकिन जो स्टे हम लोग जिस होटल में हम लोग का रेगुलर स्टे है कंपनी का, वो 3-4 हज़ार में हो जाता है। तो यहाँ आप 7-8 हज़ार का बिल दिखा रहे हैं, किस बेसिस पे दिखा रहे हैं? इवन आपका जो ट्रैवल भी आप आए हैं यहाँ से, जहाँ से आप आए हैं वहाँ का अगर हम लोग फ्लाइट एक्सपेंसेस भी देख रहे हैं तो 7 to 8,000 है, लेकिन आपने 20-25 हज़ार दिखाया, मतलब और फिर रोड ट्रैवल भी इतना, तो ये सब मतलब ऐसे क्यों? मतलब आपको यहाँ आना है या फिर वापस जाना है? नहीं ऐसा तो बात नहीं है, फिर भी जानती तो है महंगाई का जमाना है, थोड़ा बहुत। मगर इसमें आपका जो रेज्यूमे लगाया है उसमें भी हमें डाउट हो रहा है कि आपका जो पासिंग ईयर है और डेट ऑफ बर्थ में मुझे कुछ डिफरेंस लग रहा है, मतलब मैं जो परसीव कर रहा हूँ। ये तो नहीं हो सकता सर, क्योंकि शायद आप लोगों के साइड पे ही कोई फॉल्ट हुआ होगा कि मिक्सिंग हो गया या दूसरे का कुछ देख लिया आप लोगों ने, कि वही मेरे ऊपर आप लोग डाल रहे हैं सर। नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर पासिंग ईयर आपका दिखा रहा है जिस समय, डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज है आपका तो कुछ ना कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं आपके पास। बट सर पासिंग ईयर इम्पोर्टेंट है इस जॉब के लिए, टैलेंट आप लोग ढूंढ रहे हो? नहीं टैलेंट तो आपका पहले पता चल गया आपने दिखाया आपका टैलेंट तो नहीं सर, आपने टैलेंट पहले दिखा दिया, अब इसका क्लैरिफिकेशन कीजिए, आपका पासिंग ईयर ऑफ पासिंग और डेट ऑफ बर्थ इतना क्यों मिसमैच कर रहे हैं? आप लोग को फिर से देख लीजिए, नहीं तो मैं फिर से आप अपना ओरिजिनल फिर से एक बार दे देंगे। नहीं अभी आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया आपके टैलेंट पे बेस पे, लेकिन आपका टैलेंट सेकेंड राउंड में बहुत फर्जी दिख रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि इसको अगर आप विदिन 2 days अगर आप सबमिट कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज वी नॉट गोइंग टू हायर यू। आप लोग के साइड से कुछ मैनेजेबल नहीं हो सकता सर? क्यों सर? नहीं, हमारे यहाँ ये मैनेजर, हमारा सिस्टम जो HR पॉलिसी है बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसी बात कीजिए भी नहीं, दोबारा आपको चांस नहीं दिया जाएगा। पक्का बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है पात्रा जी, आप तो फर्स्ट राउंड क्लियर कर चुके हैं, सेकंड राउंड के लिए हाँ हम लोगों ने डिसाइड किया है कि नहीं हम लोग तो ले नहीं पाएंगे तो सेकंड राउंड में आप वापस जाते हैं, वी गोइंग टू हायर अनदर कैंडिडेट। थैंक यू सो मच। आपने सॉरी, आपको मैं रिटर्न का फ्लाइट भी नहीं दे नहीं वो पहले ले लिया आपने। हाँ, वो पहले ले लिया, ठीक है, लेकिन हम लोग आपको रिम्बर्स नहीं कर पाएंगे, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सैलरी में थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। at least in future in other फ्यूचर यस, डोंट चीट विद एनी कंपनी। ओके, आप करना है तो आप कर सकते हैं खुद से, लेकिन नॉट विद द कंपनी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बी पेशेंस विद अस, थैंक यू। सुपर मतलब एक अपर मैनेजमेंट ने हमें बिल दिया है, सबमिट दिया है, उसमें वी फाउंड फाइनेंस फाउंड की वो जो बिल्स हैं और कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस भी लगे जो कि फर्जी हैं कम्प्लीटली।
तो एक यहाँ पे अकाउंट्स मैनेजर होगा, एक एम्प्लॉय है और एक जूनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है. सो आई विल प्ले अ रोल ऑफ अकाउंट्स मैनेजर, ही विल बी द जूनियर अकाउंटेंट, द वन एम्प्लॉय. So you received the bill. एक्चुअली सुमित यार इसमें ना बिल में थोड़ी कंफ्यूजन है. एक्चुअली इसमें बिजनेस एक्सपेंस शीट जो लगा हुआ है वो सही नहीं है और इसमें टोटल नहीं हुआ है सही से. और दूसरा चीज़ है इसमें जो मेडिकल के बिल लगे हुए हैं, मेडिकल के बिल में भी अभी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है डॉक्टर का. तो इसमें क्या कर सकते हैं? अगर हम डायरेक्ट जाएंगे उनके पास तो प्रॉब्लम होगी. नहीं, उनसे एक बार हम बात कर सकते हैं. नहीं तो एक काम कर सकते हैं, जिन्होंने दिया सर ने, सर को एक बार दिखाई. अगर तो अगर आप नहीं जा पा रहे उनके पास तो we can मैं go to कहना our चाह रहा था manager. कि अगर आप जाओ, we can go to our manager first Yeah. and we can discuss with her that कि what is this is the case we found Yes. and क्या हम इस पे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या she can suggest us. Okay. We can go to her. What do you suggest? हाँ उनके पास जाना चाहिए हमें एक बार, डिस्कस कर लेना चाहिए. That's all. वही चीज़. Hi Vijay, hi Sumit, how are you? All well? यस यस. Yes, बताएं क्या हो गया? एक्चुअली इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं. एक्चुअली क्या है कि बिजनेस एक्सपेंस शीट में साइन नहीं है, अप्रूवल्स नहीं है. हाँ. Bills और थोड़े इसमें टोटल में वो मिसमैच हुआ था. So have you discussed Yeah. with the manager, with that the manager? prescription is not there with the medical bills and all. So have you checked with them or not? I have checked, but you can discuss with that person. Why? Why you are not checked? If these are not as per policy, we can check. We can श्योर, tell them. बट अगर हम उनसे डायरेक्टली बात करेंगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी. We found that is the best solution कि आपके थ्रू जाएं, not to go. एक्चुअली उनके निगाह में मैं खटकने लगूंगा. सीधी बात है. No problem. See, अगर कोई भी क्लेम कर रहे हैं वो एज पर पॉलिसी नहीं है, सपोर्टिंग आपको लग रहा है कि फर्जी है, ठीक है, यू कैन चेक फर्स्ट थिंग कि जो मेडिकल बिल है इसकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है ना. ठीक है, और जो इनवॉइस है वो कैश रिसीट अटैच की है, वो नॉट अलाउड है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी के आगे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम 15 USD दे सकते हैं, तो वी कैन नॉट प्रोसेस दिस. एट द सेम टाइम जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है एक बार हम उससे चेक कर लेते हैं, क्या पता उनके पास कोई जस्टिफिकेशन हो. फर्स्ट वी विल चेक, जैसे उनका रिवर्ट आएगा वी विल प्रोसेस और विल से सो वी कैन नॉट प्रोसेस, ठीक है. आई विल राइट टू द मैनेजर. फाइन, आई डू द नेडफुल, नो वरी, यू टेक केयर. थैंक यू. वेलकम. थैंक यू. घर में and the amount of workload that I'm getting is like immense और time नहीं मिलता है. थोड़े से टाइम में बहुत सारा काम अगर संभव हो तो आप इसको देख लो, नहीं तो फिर आप जैसा अपने सुपरवाइजर से बात कर लो. मैंने बात करने की कोशिश की बट उनको लगता है कि नहीं ये कंपनी जो है लाइक इट्स अ मल्टीनेशनल सॉर्ट ऑफ, तो हमारे को ऐसा अगर सुपरवाइजर जो है नहीं सुन रही हैं तो आप जो अपने उनसे ऊपर लेवल के जो हैं उनसे अपने प्रयास किया, या फिर जो HR से भी कॉन्टेक्ट प्रयास करो. तो HR बात सुनो. HR पहले तो आप आपके जो ऑफिस से हेड है आप पहले एक बार उनसे बात कर लो. मुझे लगता है कि सुनना चाहिए. अगर वो नहीं बेहतर करते हैं तो फिर आप जो है एक बार बट HR यहाँ से पे बात कर सब लो. भागते रहते हैं, फिर मुझे सोचा जाएगा ये फीमेल एम्प्लॉय है, इनके अलग अलग टैंट्रम्स हैं, इनका बेबी का भी इशू रहता है, कभी घर इशू रहता है एंड स्टफ. मुझे लगता है कि एक बार आप जैसा एक बार अपने सुपरवाइजर से बात करके, या नहीं तो अगर वो नहीं सुने तो फिर आप एक बार आगे बात करके देख लो. मुझे जैसा मुझे लग रहा है, लेकिन और HR भी अपनी अच्छी हैं, अगर आप उनसे बात करोगे तो मुझे लगता है कि आपका जो सोल्यूशन निकलेगा. ठीक है. Ma'am, I have to discuss the same thing, like, you know, my family and, you know, the work is, I'm not able to balance it. So how do you take it? Like, I mean, either you give me some more time to finish the work or like, you know, some arrangement. Understand your situation. We have already had a flexi time and all of it. But the thing is that, madam, that baby is very small. He doesn't let me work in the night even. So like, you know, it's like if I work in the day for the office and then going back home, doing the household stuff and then managing my baby is also essential in the night. So how do I manage it? I really don't understand. Regarding this one, I spoke with the head of the department regarding. So as per the policies, we have already given the flexi times, flexi allowances times and flexi fixes. So, but I'm doing the, like, you know, 9 to 5 job, the time I'm spending in the office and the amount of work is more, that's why I'm not able to finish it. So like, please do understand, otherwise I'll be having another
option left, that is I will just resign. I will think about this and will discuss with the head of the department. Thank you. So this is a problem, sir, that she is पहले आप नहीं कि माँ ये सर में है कमी मैं टाइप कर रहा हूँ ये Excuse me, sir. Yeah, May I come in, yes. sir? Yes, please have a seat. Thank you. So, one of the new employee has joined. Her name is Madhurika. She is having a work problem issues. Yeah. She is not manageable with the family problems and the work issues. So, how do you solve it? तो ऐसा कीजिए एक बार तो उनको आप बैठ के आराम से बात कीजिए उनको बताइए कि जो है आपका ये फैमिली इश्यू है और फिर भी अगर वो मेंटली सी इज़ नॉट ओके तो उनसे मेंटली डिस्कस कीजिए और डिस्कस करके इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अदरवाइज़ अपने आपके एचआर में कोई रूल देखिए अगर उनको और टाइम का या कुछ ऐसा कुछ मिल सकता है या सैलरी का मतलब कुछ ऐसा है कि भाई हाफ सैलरी कट के या कुछ करके वो अपना घर भी उनका मैनेज हो जाए और ऑफिस भी क्यों कि वो अगर मेंटली ठीक नहीं है तो फिर कल को कोई और बात होगी गलत बात होगी या बात मीडिया में चलेगी। आजकल पता है ना रिकॉर्डिंग भी हो जाती है और आज तक चैनल वाले तो आजकल वैसे ही बोल जाते हैं वो डेंजरस हो कहीं मीडियम चले गया तो अपने ऑफिस का डेकोरम भी ख़राब होगा कंपनी का जो है वो चीज़ें भी होगी। तो एक बार आप बैठ के बात कीजिए उनसे शांति से और फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर हम मीटिंग भी एक बुला लेते हैं सभी एम्प्लॉय की उसमें डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू provide the facility of work, either flexible work arrangements or whatever is possible. HR, then we'll discuss with the HR. आवाज़ ऊँचा हाँ जी बताइए। As a mentally issues problem so from one of the employee, so we want like what is the policies we can change it or what can done in order to solve the problem. देखिए ऐसा है इसमें पॉलिसी तो हमारी चेंजेस हो सकती हैं अगर हमारा एम्प्लॉय अच्छा है वो काम अच्छा कर रहा है और उसको हमें काम देखना है तो हमें फ्लेक्सिबल टाइम भी देना होगा और उसको टाइम पे भी बढ़ा के देना होगा जिससे कि वो इजीली काम कर सके क्योंकि एम्प्लॉय को हायर करना भी एक बहुत टफ जॉब होता है और वो अगर हमें अच्छा मिल गया तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आप उनको एक नहीं तो एक सपोर्ट स्टाफ दे दीजिए जो कि उनके काम को थोड़ा और सीख सके और उनको भी सीखे वो समझ सके आगे बढ़ सके वो भी तो ये आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। आप एक दूसरे को सपोर्ट करके चलिए वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मेंटली हैरेसमेंट में से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। कोई मेंटली है टॉर्चर हो रहा है तो वो काम नहीं कर पाएगा चाहे वो कोई भी हो चाहे इसमें लेडी हो चाहे जेंट्स हो सबको प्रॉब्लम्स आती है। टेक केयर फैसिलिटी मिल सकती है आप उनको कुछ ऐसी फैसिलिटी दे दीजिए जिसमें कि उनको बेबी की ज़्यादा टेंशन ना हो। देखिए हमारी कंपनी में इस बार आप जानते हो कि ये जो हम मोनोक्रोटोफॉस मंगवाया बाहर से और इस बार आपको अच्छे से मार्केट में बेचना है। आपको पता ही है कि जो परफॉर्मर होंगे उनको फॉर्म की प्योर ट्रिक मिलेगी और अच्छे से आपको सेल करना है और मार्केट में बिल करना है। क्या हाल है सर ठीक हो? ठीक ठाक है आप कैसे हैं? बैठिए सर बहुत दिन हो गए दिखाई नहीं दे रहे। बस सर ऐसे ही चला हुआ है काम बहुत ज़्यादा है और टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा है इस बार। तो ये सर इस बार नया प्रोडक्ट आया है एक चाइना से तो बहुत अच्छा ये इंसेक्टिसाइड है और बड़ा अच्छा कंट्रोल है इसका फार्मर क्रॉप्स में तो आप अच्छी से सेल कीजिए इसकी और आपको भी काफ़ी बेनिफिट्स देंगे। जितनी अच्छी सेल होगी आपको भी कुछ फॉरेन ट्रिप हम लगवाएंगे है ना तो अच्छे होटल्स में रुकवाएंगे आपको बहुत बढ़िया। ये तो बेच जाएगा और उस पर किसान को कैसे कैसे हम लोग देखेंगे? किसान को फायदे बताइए। बहुत अच्छे फायदे हैं बहुत अच्छा कंट्रोल है इंसेक्टिसाइड और किसान के लिए डिस्काउंट वगैरह कुछ है इसके लिए कुछ स्कीम वगैरह? अगर आप अच्छी सेल करोगे तो वो भी कुछ हम सोच सकते हैं इसके बारे में। ठीक है तो मेरे को तो माइक
और भाई मनीराम, राम राम। राम राम। क्या हाल है भाई मनीराम, गांव में ठीक है सारे? बस बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो आज कैसे खेत में चक्कर लगाना हुआ? खेत में बहुत कीड़े आ रखे हैं फसल में, तो फसल भी सूख रही है। मैंने भी यार ये नरमे की फसल लगाई थी, इसमें कुछ कीड़ा आ रहा है, तो मुझे भी कोई दवाई बता ताकि मैं इस पे से अच्छी स्प्रे कर सकूं और इस कीड़े को मार के बढ़िया अपने फसल का उत्पादन ले सकूं। यार मंडी में दुकान है, वहाँ से आप ले सकते हो, बढ़िया है। काफी दिनों से ले रहा हूँ मैं, 5 साल हो गए। नाम क्या है? दिनेश कुमार जी है। अच्छा। लाला जी राम राम। और सेठ जी ठीक हो? परिवार ठीक है जी? जी जी ठीक ठाक है। आप बोलिए। ये कुछ पत्ते लेके आए हो, इसमें कीड़ा लगा है, ये नरमे की फसल है, तो इसमें हमें तो कौन सी दवाई करनी चाहिए जिससे हमारा जो नरमा है वो खराब ना हो? ये अभी हमारा जो है आया था जो दीपाक का एक मेडिसिन जो हम लोग लाए थे, हमारा जो ये बुनिया जी लेकर आए थे बाहर से, वो वाला आपके लिए ठीक रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं कीड़ा वगैरह जो लग रहा है, ये जो आ रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस दवाई से मर जाएगा कीड़ा? ये दवाई से पूरा मर जाएगा, आपका ठीक ठाक रह जाएगा। कितने रुपए की है सेठ जी? ये है लीटर है 1000 रुपया। 1000 रुपये लीटर। इसका ढक खुला लग रहा है मेरे को कहीं से। नहीं खुला नहीं, ये ठीक है। नहीं हम लोग अभी रखे हैं सैंपल के लिए, आपके लिए मंगा लेंगे। अच्छा चलो, तो आप मेरे को ये 5 लीटर दे दो, मेरे पास 5 एकड़ का खेत है, तो उसमें स्प्रे करते हैं। तो इसका तो मैं इसका ये बिलिंग पे साइन कर देता हूँ, ठीक है? अभी आप दोबारा फार्मर आएगा, अब की बार जो बोतल टूटी हुई है, आप इनको फोन करके बुलाइए, इनको बुलाइए, कुछ बोतल टूटी हुई आई है। अरे भाई मनीराम, ये क्या हुआ? सारी फसल ही सूख गई मेरी, तो काम दिनेश जी के पास भेज दिया। ये दवाई नकली है, कीड़ा तो मरा नहीं और फसल को खा गया। मैं खुद मर गया ये कीड़ा। इसमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूँगा? अब करना क्या है, मीडिया वालों के पास जाना पड़ेगा। नहीं, मैं पहले तो दुकानदार से बात करता हूँ, नहीं तो फिर मैं मीडिया को वहीं बुलाऊंगा। लाला जी राम राम। आपने कीड़ा मारने की दवाई दी थी, कामे मारने की? ये देखो फसल उखाड़ के लाया हूँ साथ में, ये मेरा सारा नरमा सूख गया। तो ये आपने कैसी दवाई दी है? आपकी दवाई में मिलावट है? नहीं है। और किसान को नजायज फायदा उठा रहे हो, अनपढ़ता का। जो दिया है जो कंपनी ने दिया है उससे मैं बात कर रहा हूँ। और आप नहीं, आप कंपनी वालों से बात करिए, हमारा फसल का मुआवजा दिलाइए, नहीं तो हमारे सारा फसल रुकिए, ठंडा दिमाग रखिए, आराम से। 7 महीने वेट करते हैं, जब ये कॉटन लगता है अप्रैल में लगता है, तब जाके नवंबर में पैदा होगा। हमारा तो सारा बाल बच्चा सब उजड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप बैठिए, आपके लिए मैं कर रहा हूँ कुछ। आप जब लिए थे 1 लीटर वाला, उसके लिए तो आप लोग डिस्काउंट भी लिए थे। अभी बोल रहे तो मेरे को सस्ता वाला थोड़ा दे दीजिए, मेरा भी हो जाएगा। आपके पास पैसा भी नहीं था उस समय। आपने तो बोला था ये दवाई अच्छी आई है। मैं तो दवाई तो अच्छी दिया हूँ, बोल रहे हो ना आप थोड़ा रुकिए। कौन से पहली बार दवाई डाली? कंपनी से बात कर रहा हूँ, कंपनी वालों से बात कर रहा हूँ, वो आएंगे अभी, रुकिए। आप उनको बुलाइए, नहीं तो मैं मेरी फसल के लिए मैं कहीं भी जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरे फसल का मुआवजा। रुकिए, आप ठंडा रखिए, बैठिए। हेलो बुनिया जी। ऐसे किस तरह का दवाई दे दिए। मेरा एक किसान, पुराना वाला किसान है, वो वाला बहुत झमेला किया है यहाँ पे आकर। महाभारत चल रहा है, उसका कुछ काम नहीं किया है। महाभारत दवाई तो बढ़िया ही है, नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके वो बहुत ही अच्छा किसान है, वो गांव का बहुत। अरे कुछ नहीं, आपको ना कुछ और बेनिफिट देंगे, आप थोड़ा करके सेटलमेंट कर दो। अरे इस बार देखिए, इस बार आपको 2 मैं यहाँ का 20 साल का 25 साल का दुकान है मेरा यहाँ पे। और वो जो फार्मर है वो बहुत ही रिलायबल फार्मर है, उसके पास उसके भरोसे 500 फार्मर रहते हैं, समझ रहे हैं ना? तो कोई बात नहीं, इस बार आपको हम 1 नहीं 2 ट्रिप वारंटी लगवा के लाएंगे। वो फार्मर को कुछ दे दीजिए। चलो फार्मर को भी अगली बार अगली फसल आएगी तो हम उसको दवाई भी उसको देंगे ऐसे फ्री में। इस बार आप सेटलमेंट करिए कुछ ना कुछ उसका, ठीक है जी? हाँ सेठ जी, कुछ हुआ क्या? बात हुई कंपनी वाले से? हाँ बात हुई, आप आए, थोड़ा बात करेंगे आपके साथ। हाँ जी लाला जी बताइए। ऐसा एक काम कीजिए, जो आया था ये यहाँ पे मेरे साथ,
और ऊपर से आपको फॉरेन ट्रिप भी भेजा, बैंकॉक भेजेगा। नहीं, बैंकॉक से मेरा नरमा वापस आ जाएगा। हमें क्या पता बैंकॉक हम लोग लेकर जाएंगे। हम तो कभी इशारा से आगे वहाँ पे 8 दिन रुकेंगे। नहीं, मैं मीडिया को बुलाऊंगा। मीडिया के बारे में थोड़ी नहीं, मैं यहाँ पूरे किसान इकट्ठे करूंगा। हरियाणा नंबर 1 से बोल रहे हैं जी। आइए जी, कैलाश जी आइए, आप हमारे पास आइए। हेलो, क्या हुआ दुखीराम जी? जो मैं लेके आया, ये किसकी वजह से हुआ ऐसा? ये देखो, ये जो कुछ लोगों के माफिया हैं जो इंसेक्टिसाइड की दवाइयाँ बेचती हैं, जो जहरीली दवाइयाँ जो फसलों में डरती है, उनमें इन्होंने नुकसान करवा दिया हमारा। हमने इनके पास फसल लेके आए थे, बीच में कीड़ा लगा तो उन्होंने बोला ये चाइना की दवाई है, ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, ये वो, तो ये मेरी सारी फसल ही खराब हो गई। और अब ये कह रहे हैं आपको बैंकॉक ले चलेंगे। हाँ, तो आप इसको अब दुनिया में बताइए, सारे किसानों को बताइए, ताकि मेरे साथ कुछ किसान जुड़े। मैं मेरे गांव से भी किसान आए हुए जो हाथ ऊंचे करे, वो किसान बैठे है किसानों की, तो देखो अन्नदाता को मार रहे हैं ये। ध्यान से देखिए इन दरिंदों को। कैसे काटी है, कैसे लूटा इनको। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इनको। आपके सामने किसान के गरीब चेहरे को किस तरह से मतलब लूटा गया है। इसमें हमारी प्रॉब्लम बड़ी जेन्युइन सी है। हेडक्वार्टर से हमें एक ईमेल आया है, किसी एम्प्लॉय की अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है और उसके रिगार्डिंग एक ईमेल आया है। और हमारे दिनेश सर जो है HOD हैं और मैं उनका असिस्टेंट हूँ, तो हम इनसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि हम उससे कैसे ओवरकम करें। तो आई थिंक कि पिछला इतना बढ़िया रोल रहा, लोगों ने ये दिखाया कि हमारा तो उसमें कहीं सूट ही नहीं करेगा, बट ठीक है। बताइए। यस सर, मेरी सांसें फूल रही हैं। मैं बार बार आपसे बता रहा था कि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है और आप क्या नाम है? नहीं दे रहे थे। और प्रभात है, वो बार बार पानी वाले मिला अभी हमने सुना था ना, सर ने सजेस्ट किया था भगवान के दर्शन हो जाते हैं, तो फाइनेंस में वैसे बताइए क्या दिक्कत आ रही है? सर वो रेगुलरली रेगुलर हो रहा है, अटेंडेंस कम हो रही है, लेकिन जेन्युइन इशू है उसके साथ। वो बताया है कि उसकी बेटी का कुछ हेल्थ इशू चल रहा है, उसकी बेटी को कीमो चल रहा है, तो ये हमारे पास जेन्युइन इशू है, बट उसकी अटेंडेंस एक्चुअल में शॉर्ट हो रही है सर। अच्छा, तो आप वो जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उस डिपार्टमेंट में आपने पता किया है काम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई काम में परफॉर्मेंस चल रही है, परफॉर्मेंस के अलावा काम में भी दिक्कत तो नहीं आ रही कि पेमेंट नहीं हो रही या रिकंसिलिएशन पेंडिंग है, या उस डिपार्टमेंट के हेड से पता किया आपने? हाँ सर, वो सब फाइन है, उसमें कोई इशू नहीं है, सबका पेमेंट ऑन टाइम है। तो वो कैसे घर से मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ही इज डूइंग मीन्स मैनेज कर रहा है सर, शाम में काम कर लेता है, घर से रात में काम कर लेता है, बट डे टाइम में उसे हॉस्पिटल 9 o'clock मॉर्निंग जाना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा सा अटेंडेंस उसकी। तो हमारा जो भी कोविड के टाइम में HR ने चलाया था FWA का, तो वो फॉर्म नहीं भरते क्या? एग्जैक्टली सर, वो रोज ऑफिस भी आते हैं, ऐसा नहीं डे टू डे वो ऑफिस आते हैं। फ्लेक्सी आवर्स है हमारे पास, तो उसमें आप जस्टिफाई कर सकते हैं, हेडक्वार्टर को लिख सकते हैं। तो सर ये तो फिर आप HOD के तौर पे आप ही हेडक्वार्टर को कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बना के दीजिए क्या है नाम और पूरा क्या आप बताना चाहते हैं, और उसमें उनकी जो डिपार्टमेंट है उससे भी एक बार एक ईमेल में ले लें कि उनकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, काम हो रहा है टाइम पे। उसके बेस पे हम लोग हेडक्वार्टर HR को लिखते हैं जवाब। ओके सर, मैं आई विल गेट द डिटेल एंड आई विल फॉरवर्ड। हम लोग इस समय उनका ऐसा टाइम चल रहा है, तो उसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए और बजाय हम उसमें हर्डल्स क्रिएट करें, तो एज ए गुड ह्यूमन वी शुड हेल्प। यस सर, ठीक है, थैंक यू फॉर योर काइंड सजेशन। थैंक यू, दैट्स ऑल। Excellent, excellent. We learned about the
work ethics and email etiquettes. And this thing is like the pamphlet is more informative for us because most of the things we do, it is covered here. So this pamphlet is informative. So the role play sessions, the case Role studies. play sessions were also fine, and we enjoyed a lot. And you can include more activities like that. Yeah, the same thing I was trying to say that Yeah. more activities should create more enthusiasm to the other people too, because we had kind of outside exercises which is more good. which was more That good. you have to tell Konika. Yeah. Yes. Outside exercises by the हम लोग क्या करते हैं जो चाहिए हम करके देते हैं. You saw my by the वीडियो trainer ना इंट्रो actually. वीडियो में Yeah. बहुत कुछ करते हैं. By the trainer actually we had kind of thing before, but now it's good because first time we are doing with you, and that is very So what nice. we do, we give a variety. Yes. एक केस स्टडी है, एक रोल प्ले है, एक वीडियो है. So that you understand everything. You know, in a different format. That's the thing. Otherwise, everything is on the pitch, and it's quite good. And I hope we will meet again Like this the way you presented everything and taught us. Thank you. So hello, the training session we attended today at Hotel Park was organized by CIMIT. The trainer Mr. Sundaram was giving us the presentation. It was 3/4 of a day. The new learnings that we got during the session were very insightful and helpful for our future usage in office as well as home. And we are grateful to him for using live case studies, examples and other practical things which we do in our day-to-day office operations. So I thank him, I thank the organizers, and I recommend this session to be held for other companies as well. And we in CIMIT also would like to have several other sessions organized by him. Thank you. Thank you. Thank you. Feedback. Yeah, I would say from the training we got a lot to learn. First of all, I would say we should take the reason to smile. I mean, we should be smiling all the time. This is one thing, and then patience and perseverance is the key to success. This was taught, and a lot of etiquettes and mannerism was also taught. So I think that such training should be given, and it was planned in such a way because we are researchers and technicians from the field. So it was planned in such a way that everybody is they understood most of it. I think the technicians also must have carried away good things from you, because the way it was planned was easy to understand for all, for us even and for them as well. So I feel this should be advised for future. Okay. Thank you. Yeah, it was very nice, and we learned a lot, and very practical, and all these people could not sleep, and they very enjoyed and participatory, and all, especially these type of shots, filming shots, those type of practical examples really appreciate. Thank you. Thank you.